Very good morning, class 12th. This is the second session of chapter number 5, that is principle of inheritance and variation, right? Okay, so introduction we had completed. Now, in the previous, I told you to think about pollination, right? Cross pollination and self pollination. I hope you have understood. And then आई टोल्ड यू अबाउट द बैगिंग एंड इमेस्कुलेशन कि दो फ्लावर्स के बीच में कैसे क्रॉस कैसे करवाते हैं. आई थिंक यू रिमेंबर इट. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. मतलब एक जीन के थ्रू हम बाकी सारे जीन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, बट वन बाई वन वी शैल स्टडी. इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वन जीन इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, then same way we can understand about other genes also. ओके, तो देखते हैं कि ये, तो पहले तो हमको ये पता हो कि जीन क्या है. इनहेरिटेंस तो हमने पढ़ लिया है पिछली बार, है ना. वेरिएशन ऑल्सो वी हैव स्टडीड. इनहेरिटेंस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, राइट. और जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द जीन्स एंड दीज ऑल करेक्टरिस्टिक्स. क्लियर. तो देखते हैं कि जीन्स क्या है. ओके, so let's see gene. Before that we have to see the structure of chromosomes. In class 11th we have studied there are many types of chromosomes on the basis of their centromere: metacentric, submetacentric, telocentric. I hope you remember, है ना. So these are the chromosomes, but it is not a single chromosome, it is a pair of chromosome. ठीक है. So this is one chromosome, this is another chromosome. If we talk about the human body, there are 23 pair. So in all the animals or plants, the chromosomes are in the pair, and if they required, they are separated. Now you remember meiosis, cell division, mitosis also. meiosis में क्या होता है आपको पता है ना, ये यहाँ से 20 से सेपरेट होके अलग अलग सेल में चला जाता है. आपको देखना पड़ेगा meiosis सेल डिवीजन एक बार ठीक से, तब आपको समझ आएगा. ओके, बट ये क्रोमोसोम क्या है फिर? ये तो क्रोमोसोम्स हैं. तो क्रोमोसोम इज नथिंग. इनसाइड द क्रोमोसोम व्हाट इज प्रेजेंट? डीएनए. इट इज इन द coiled form, that is called as chromosome. Inside the chromosome what is? DNA is coiled. Now again in class 11th we have studied during the cell division chromosomes are not visible. If you remember, we were drawing the nucleus like this and we were drawing the threads. There were no chromosomes. What is these threads? Nothing but DNA thread when it is uncoiled. ठीक है. So what we were saying them? We were saying them chromatin fibers. So when cell needs to divide, then chromosomes are dissolved and this coiled form of DNA is uncoiled and they become thread-like structure. ठीक है. Then the structure of DNA also you have studied in class 12th. Sorry, class 11th, not class 12th. ठीक है, like that. And what these were? A C T G A T T G C T A A C. तो यहाँ क्या होगा?
T G C A T A A C G. So what these are? These were न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स. ये हुआ एक पेयर हो गया ना, ये नाइट्रोजनस बेस थे जिसे हम बोलते थे न्यूक्लियोटाइड, और दोनों बेस हैं and that is pair, and between A and T there is a double bond, and between G and C it is triple bond. So nucleotide pairs. ठीक है, it's a long chain of these nucleotides. So this is DNA. But what is gene? तो अब देखते हैं. देखो, big size is chromosome, condensed form of DNA. It is uncondensed DNA. And if we talk a particular piece of DNA, suppose हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, so it will be A T T G. So this piece of DNA or any piece of DNA, part of DNA. अब वो पार्ट ऐसा है जो पार्ट ऑफ DNA which play important role in प्रोटीन सिंथेसिस. हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स या जो भी हार्मोन्स, उसको बनाने में वो एक पर्टिकुलर पीस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उस स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? जीन. सो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन शुड बी वेरी क्लियर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनहेरिटेंस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. डीएनए का एक छोटा सा पार्ट या बड़ा पार्ट, वो उनमें सारे बहुत सारे सीक्वेंस हैं. ऑल द सीक्वेंस टुगेदर दे फॉर्म अ जीन. ठीक है, जीन बड़ा भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग सीक्वेंस आर ऑल्सो पॉसिबल एंड शॉर्ट सीक्वेंस आर ऑल्सो पॉसिबल. सम जीन्स आर बिग, सम आर स्मॉल, बट दे आर नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. In the part of that DNA, the informations are written in the form of codes that we studied in class 11th. Some coding are there, that is ATCG, etc. In later lessons we shall see what are the codings and what is their meaning. So this is the gene. Ab, you know, due to sexual reproduction, this chromosome will divide and will go to the children also. Means half part of the DNA is from the mother side and half part of the DNA is from the father side. So in this way the characters are transferred. तो मेंडल ने इसी की स्टडी की कि कैसे करेक्टर्स जाते हैं. अब ओके, अब ये देखते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम में, है ना. We'll draw it again. For example, it's a pair of chromosome और यहाँ पर एक जीन का पीस है. ठीक है, अब क्योंकि पेयर हैं तो दोनों ही क्रोमोसोम सेम होते हैं, तो डेफिनेटली दूसरे क्रोमोसोम में भी सेम पेयर होगा, मीन्स सेम जीन्स होंगे, राइट. अब इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं आप. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ टी, तो ये भी क्या होगा? टी. अगर ये कैसा है, ये हमने पढ़ा था ट्रू लाइन ब्रीड, मतलब अगर कोई ओरिजिनल स्पीसीज़ है, उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, तो जो करेक्टर्स होंगे वो दोनों के सेम होंगे, जीन्स दोनों के सेम होंगे, कोई मिक्सिंग नहीं होगी. ओके. In class 10th also you studied about T, T, small t, capital T, like that. So if it is true line then it may be T. अब बात दूसरी भी कर सकते हैं, हो सकता है, और it may be that
यहाँ पे कोई एक जीन है, उसी का रिस्पेक्टिव जीन यहाँ होगा, बट उनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है ये कैपिटल टी हो, ये क्या हो सकता है, स्मॉल टी हो, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। सो द जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज लोकस। ये लोकेशन है क्रोमोसोम में, जो लोकेशन है दैट इज कॉल्ड लोकस और लोकाई। और ये दो जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन है ना, जो कि अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, बट बोथ क्रोमोसोम्स आर द पार्ट ऑफ पेयर। दोनों सेम है, जो करेक्टर्स इस क्रोमोसोम में है सेम करेक्टर इसमें। तो डेफिनेटली वॉट एवर करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम, सेम करेक्टर और सेम जीन्स आर प्रेजेंट इन अनदर क्रोमोसोम, दैट मीन्स दे आर पेयर्ड, दे आर प्रेजेंट इन पेयर। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों पेयर सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ से क्रोमोसोम कटता है, इन मियोसिस यू हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है। सो मेंडल ही ट्राइड टू स्टडी दीज थिंग्स इन डिटेल। सो लेट्स ट्राई। I hope you remember character and trait. Character and trait. For example, one character is height, so there may be two traits, tall and dwarf. अब जो पेयर ऑफ जीन है, द पेयर ऑफ जीन which may be of similar type or different type, so this pair is called as allele. क्या कहते हैं हम इसे, एलील। ये भी क्या है, एलील। एलील means a pair of genes which are present in the same locus of paired chromosome. Clear? Okay, ठीक है। And both are responsible for same character but different trait. Pair of genes which are present in the same location of the chromosome, paired chromosome, and they are responsible for same character but may be for same trait or different trait. यहाँ पर कैपिटल टी टॉल के लिए, ये भी टॉल है तो दोनों सेम है, बट हियर कैपिटल टी इज़ फॉर टॉल, इट इज़ फॉर डॉर्फ, so it may be different, but they are the pair of the gene which are responsible for same character but trait अलग अलग है, that is allele. Okay, ठीक है। Now let us see how Mendel started his experiment. Already we have discussed that Mendel chosen pea plant, Pisum sativum, for conducting the experiment, as it has short life cycle and easily we can see the results and various characters are present. So he tried to chalk out the first hybridization experiment. First hybridization experiment. So what he did, he took two plants and both plants were true breeding. Tall plant and dwarf plants as parent. तो कोई भी क्रॉस पेरेंट से शुरू होता है, राइट, ठीक है। देन व्हाट ही डिड, ही टुक टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट। और हाइब्रिडाइजेशन ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोनों प्लांट को पास में रख दो, ये सारे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, उनके गैमेट्स आपस में क्रॉस होने चाहिए। तो ये फ्लावर है इसका, ये इसका फ्लावर है, इसमें क्या बनेंगे, पॉलन बनेंगे और साथ में ओव्यूल भी बनेंगे। हियर इन दिस फ्लावर आल्सो pollen will form and ovules will also form. So how we can cross them? इनमें से किसी एक को हमको पेरेंट मानना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, टॉल प्लांट को पेरेंट माना, तो क्या करेंगे हम, पॉलन ग्रेन्स को ब्लॉक कर देंगे। कैसे ब्लॉक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीजर, a particular plant which you have selected,
फ्रॉम दैट फ्लावर एंथर यू रिमूव, एंथर्स को रिमूव कर दीजिए उस फ्लावर से. नाउ इट बिकम ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स फीमेल फ्लावर. ओनली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इज रिमेनिंग. और उसके बाद आपको क्या कर देना है उसको बैग, so that undesired pollen grains can't reach to stigma. Now you wait till stigma becomes receptive or stigma become mature for accepting the pollen. Okay, then you take the pollen from here. यहाँ ओवरी से हमें या ओव्यूल से कोई मतलब नहीं है. You select the healthy pollens, healthy pollen from door plant, and artificially you are pollinating. Then you open the bag, and after opening the bag you transfer the pollen grains into the stigma, and then again you bag. ठीक है, bagging. And what you are doing? pollination. ओके, तो देखो स्टेप देखते हैं. सबसे पहला पॉलन को ब्लॉक किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या किया हमने? बैगिंग, बैग लगा दिया. देन थर्ड वी डिड pollination, artificial pollination. Okay, and when the artificial pollination is done, again it is bagged, and then we wait till this flower converted into fruit. कुछ दिनों बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस फ्रूट में क्या होंगे? सीड. हियर अवर हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीटेड. तो फिर से ठीक से समझते हैं. हमने दो प्लांट लिया, टॉल प्लांट और डोर प्लांट, दोनों ही प्योर थे बिल्कुल. ये भी प्योर डोर पे, ये भी प्योर टॉल है. सपोज टॉल प्लांट वी हैव टेकन एज द मदर प्लांट, एंड इट हैज़ टेकन वी हैव टेकन एज फादर प्लांट. So in the mother plant we have to block the pollen grains, right? Because we want to cross it, and for blocking the pollen grain we have to cut the anther and we have to remove from here, and then we have to bag it. This process is called as emasculation. Pollen grains को काट करके हटाना, it is called as emasculation. And then we are doing artificial pollination, means selected pollen grains, healthy pollen grains from another parent, that is door plant, we have taken and transfer into the receptive stigma or mature stigma. We waited for fruit formation, and then we got the seed. And these seeds which we have got, अब seed क्या है? एक तरह का सीड इज अ टाइप ऑफ जाइगोट है. एक आप मान लो कि क्योंकि दोनों के दिस pollen grain is a male gamete and here ovule was female gamete, so both gametes are fused, they formed seed. So as per the rule or the principle, the seed which is formed just now, they are carrying the characteristic of this door plant as well as this tall plant. Okay, so for example we have got the seeds, many seeds we got. seeds, ये कौन सा सीड है? फर्स्ट सीड है ना, फर्स्ट सीड. देन व्हाट यू नीड टू डू? देन इन सॉइल यू नीड टू sow these seeds. So for example we have sown the 4 seeds. तो क्या होना चाहिए? जैसा हम समझ पा रहे हैं कि जो इससे जो प्लांट बनेंगे उनकी हाइट बहुत लंबी भी नहीं होगी, और इससे थोड़ा मतलब इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा. बट व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड, व्हेन दीज सीड्स जर्मिनेटेड एंड दे फॉर्म द प्लांट, all the plants were tall. All the plants were tall. And he was surprised how it is possible, कि मतलब बीज का हो सकता था ना, इससे थोड़ा छोटा और इससे थोड़ा बड़ा, बट उसको डिफरेंट रिजल्ट दिखे कि सारे के सारे प्लांट कैसे थे?
tall, all tall plants. तो ये कौन सी जनरेशन है? इट इज़ कॉल्ड एज F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, या इसे हम बोलते हैं फिलियल प्रोजनी। क्या बोलते हैं? फिलियल। F फॉर फिलियल, और यहाँ 1 लगाते हैं तो फिलियल 1 या प्रोजनी 1. So the first generation which is produced after hybridization between a pure tall plant and pure short or dwarf plant, the seeds we got, all seeds produced tall plants. Clear? Okay. Then यहाँ पर फिर से देखते हैं ये क्या था, इसे हम क्रॉस कहेंगे ना, क्रॉस किया हमने दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का मीन्स क्रॉस किया, सो इट इज़ क्रॉस. नेक्स्ट व्हाट ही डिडंट क्रॉस, उसने क्रॉस नहीं किया. क्या किया? इन्हीं प्लांट्स का आपस में ही क्या करा दिया? पॉलिनेशन. तो इसे क्या कहेंगे हम? बिकॉज दे आर ऑफ सेम कैटेगरी, सेम क्वालिटी, तो इसे एक तरह का क्रॉस नहीं कहेंगे. या मतलब हो सकता है इसी प्लांट का इसी में करा दिया. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इस प्योर प्लांट को यूज़ नहीं किया, ना टॉल को ना शॉर्ट को. जो नई जनरेशन बनी उन्हीं प्लांट्स का आपस में क्या किया? पॉलिनेशन. सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन किस में किया? अमंग F1 प्लांट्स. F1 के प्लांट्स में ही पॉलिनेशन किया. तो जब F1 के प्लांट में पॉलिनेशन करेगा तो सेम होगा वही, उसको बैगिंग करना पड़ेगा ताकि दूसरे पॉलन ग्रेन ना आए. एमेस्कुलेशन करेगा, देन दे हैव टू वेट फॉर द सीड्स. तो सपोज इन प्लांट्स में क्या बने? सीड्स. वो सीड्स कैसे कहलाएंगे? ये था सीड 1 और ये दूसरे सीड हैं, जनरेशन 2 के हैं सीड्स. अब उसी सीड्स को क्या करेंगे? फिर से आप सॉइल में आप सो करेंगे. सो सपोज यू गॉट मैनी सीड्स. कौन से सीड हैं ये? सेकेंड सीड है ना. दीज वर द फर्स्ट सीड, second seed from these plants. So suppose you have sown 4 seeds for example, and you let them germinate and grow. Again Mendel was surprised by observing the results. He observed that out of 4, 3 plants were found tall and 1 plant was found dwarf. अब फिर से क्वेश्चन है, देखो. दीज ऑल वर टॉल प्लांट्स. इनमें तो कोई भी शॉर्ट नहीं था और उनको क्रॉस करने से ही ये सीड बने. मतलब इन सीड्स में किसके करेक्टर हैं? सिर्फ टॉल के. तो जब इन सीड में सारे टॉल के करेक्टर हैं तो शॉर्ट प्लांट कैसे बन गया? ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स. 3 tall, this is tall, this is tall, this is tall, and this is. What I want to communicate, ये सीड्स कैसे बने? इन प्लांट्स के हैं और ये सारे प्लांट्स कैसे हैं? टॉल हैं. और ये आपस में ही इनके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, कहीं तीसरी जगह से नहीं आए. तो जब इनके आपस में ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट मीन्स देयर पॉलन ग्रेन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉलनेस. And after fertilization the seeds were formed, and when those seeds were sown, then 2 kinds of plants were formed.
right? 3/4 were tall and 1/4 was स्मॉल। मतलब अगर 4 प्लांट हैं तो 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल, और 1/4 कैसा है, ड्वार्फ, राइट। ओके, तो ये कौन से प्लांट होंगे, ये सारे थे F1 प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स होंगे, F2 प्लांट्स। बट F2 plants are not formed by cross, F2 plants are formed by cell pollination. तो दिस इज़ F1 जनरेशन, इट इज़ F2 जनरेशन। अब इनका कुछ रेशो देखते हैं। आफ्टर मीन्स फर्स्ट क्रॉस all were tall, no dwarf, but in the F2 generation the tall ratio dwarf is 3:1। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अभी हम सिर्फ एक जीन की बात कर रहे हैं जो हाइट को डिसाइड करता है। अभी हमने फ्लावर का कलर, फ्रूट पॉट कुछ भी नहीं देखा। ओनली वी आर ऑब्जर्विंग द टॉलनेस और हाइट ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वन जीन, सो इट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू योर टेक्स्ट बुक, हियर ऑल्सो one cross is given. There he took two kinds of plants. One plant which is containing this color of flower, means purple color flower, and another plant is containing white color of flower. So this is one parent, another parent. So for crossing, you see, they are removing the anther. It is called as emasculation. We have taken it as a mother plant. हमने इसको mother मान लिया, इसको क्या मान लिया, फादर। तो ये दिख रहा है, इट इज़ फीमेल पेरेंट एंड इट इज़ मेल पेरेंट। सो फॉर फीमेल पेरेंट इफ़ यू वांट टू डू द क्रॉस वी हैव टू रिमूव दिस एंथर, सिर्फ स्टिग्मा और ओवरी बचेंगे और उसको बैक कर देंगे। एंड देन वी ट्रांसफ़र द पॉलन फ्रॉम मीन्स मेल पार्टनर और पेरेंट to stigma, and then again we can back, and then we wait for formation of fruit and seeds. So when he shown the seeds, these are F1, all were purple color flower containing plants. So he was can you tell me what will be the result if I cross them, means if I allow them self pollinating and the seeds are formed, then which kind of result you can observe? So if I take 4 plant, then 3 plants will be of purple color and 1 plant will be of white color flower. So these results surprised Mendel and he started calculating it mathematically. Okay, now he started giving some symbols for the genes which are responsible for the height. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो टॉल है उसको हम टी कैपिटल देते हैं क्योंकि जीन दोनों सेम है, तो इसके लिए हम स्मॉल टी देंगे क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, राइट। बट आपको पता है कि हर एक करेक्टर को डिसाइड करने के लिए जीन का पेयर है, तो यहाँ कैपिटल टी एंड हियर स्मॉल टी। ओके, ठीक है। तो जब क्रॉस किया इसने, इनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, है ना, देखते हैं इन नेक्स्ट पेज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ कैपिटल टी, इट इज़ स्मॉल टी। अभी एक पेरेंट है, तो पेरेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनते हैं, और जब भी गैमेट बनते हैं तो ये जीन्स आपस मीन्स बीज से सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाता है, दैट यू हैव अंडरस्टूड इन क्लास 11th itself। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2 गैमेट बने, हर एक गैमेट में एक एक जीन गया। हियर ऑल्सो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 गैमेट्स आर फॉर्म इन ईच गैमेट, सो दीज आर गैमेट्स। ओके, अब चांस की बात है कि हो सकता है कि क्योंकि हमने इसके पोलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफ़र किए थे ना, याद है ना, वी हैव टेकन इट एज मदर एंड इट एज फादर। चांस की बात है कि दिस गैमेट कैन फ्यूज़ विद दिस, तो जब फ्यूज़ होगा तो दिस इज़ फॉर्म्ड, और दिस में फ्यूज़ विद इट, सो इट विल फॉर्म दिस,
or this may fuse with it this, then it will form this, or this may fuse with it, then this may form this. So you see in ये क्या बने, ये seeds हैं. Seeds, and which seeds? F1 seeds. And when you sow them, तो उस पूरे प्लांट में तो T कैपिटल T स्मॉल t है, बट वो टॉल क्यों हुए? इस सीड के सारे प्लांट टॉल हैं, इसके भी टॉल है, ऑल आर टॉल. ओके, तो दिख कैसा रहा है ये? अंदर ये जीन्स है ना, दिस इज जीन, और ये क्या है इसका अपीयरेंस? जीन टॉल हमने कैसे देखा था? ये भी टॉल था, एंड दिस वाज ड्वार्फ, but it is their gene and appearance was tall, but for tallness they had two genes of capital T type, and they have two genes of small t type. So there is a difference in this and this. It is tall, it is also tall, parent is tall, and the F1 is also tall, but there is a difference in their genes combination. Okay, तो जब दोनों ही genes same होते हैं, it is called as homozygous. Z है homozygous, and when both genes are different, then it is heterozygous. ये भी homozygous ही कहलाएगा. अब देखो, ये homozygous tall है, ये heterozygous tall है, ये homozygous dwarf है, short है. ओके, तो जो दिख रहा है बाहर, ओके, फॉर एग्जांपल टॉल और ड्वार्फ, these are apparent characters, those are visible, these are visible characters. इसे हम बोलते हैं, ये आप थोड़ा याद रखना, phenotype. what we say? phenotype मतलब फिजिकल करेक्टर्स जो दिख रहे हैं बाहर से, उसे हम फिनोटाइप, टॉल और शॉर्ट. बट ये टॉल कैपिटल टी के कारण भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण भी हो सकता है. ये आप देख रहे हो, ये कैपिटल टी है, देन ऑल्सो इट इज़ टॉल. हियर कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इट इज़ ऑल्सो टॉल. तो जो जीन का डिफरेंस है उसके लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कैपिटल टी, ऑलरेडी आई टोल्ड होमोजाइगस टू यू, और इट इज़ कैपिटल टी और स्मॉल टी. ये सारे क्या हैं? द टाइप ऑफ जीन कॉम्बिनेशन, जीन कॉम्बिनेशन के टाइप हैं. तो यहाँ विजिबल करेक्टर्स का था, और ये क्या है? जीन्स का, जो दिखाई नहीं देते हैं अंदर बाहर से. दिस इज़ कॉल्ड एज जीनोटाइप. ओके, देखते हैं कोई प्लांट फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है, और कोई प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी है. ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो क्या सेम है? phenotype is same, but genotype is different. जीन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है, बट दिखाई दोनों सेम देते हैं, टॉल. अब देखते हैं रेशो F1 में. F1 रेशो कैसा है? टॉल रेशो डॉर्फ, तो ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल, तो हम लिखेंगे 4:0. ठीक है. अब F1 रेशो किसका है? ये फिनोटाइप. F1 रेशो जीनोटाइप देखते हैं. F1 रेशो जीनोटाइप, तो जीनोटाइप 3 हो सकते हैं, कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी रेशो स्मॉल टी. तो ये 0 है, ये 4 है, और ये 0 है, 0 4 0. ये रेशो जीनोटाइप रेशो F1 में. अब F2 में देखते हैं, तो F2 में क्या किया था हमने? जो F1 में
प्लांट्स मिले उनका ही क्रॉस किया। तो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा पेरेंट। सो फॉर एग्जांपल इट इज़ मेल, इट इज़ फीमेल, तो डेफिनेटली गैमेट्स बनेंगे इनके, तो ये दोनों जीन्स अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्रैक्टिस आप करिए घर में, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अब अगेन बाय चांस ये सब क्या है, गैमेट्स है ना, बाय चांस दिस इज़ फ्यूज्ड विद दिस, देन कैपिटल टी हो सकता है ये कैसे फ्यूज़ हो इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मे दिस फ्यूज़ विद दिस, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, और मे दिस फ्यूज़ विथ दिस, सो स्मॉल टी। तो अब देखो दोनों देखते हैं, अपीयरेंस फिनोटिपिक कैसा है, इट इज़ टॉल, इट इज़ ऑल्सो टॉल, इट इज़ ऑल्सो टॉल, इट इज़ ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशो देखते हैं, फिनोटिपिक रेशो, okay, so phenotypic ratio, let's see, tall ratio dwarf. So how many talls are there? 3, and dwarf are 1. So ratio is 3:1. But which ratio? Phenotypic ratio. There are genotypic ratio देखते हैं, जीनोटिपिक रेशो क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है, ओनली 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1 and 2, एंड स्मॉल टी कितना है, 1। सो व्हाट इज रेशो, 1:2:1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ विच रेशो, ये F1 का था ना, दिस वॉज F1 रेशो, इट इज़ F2 ratios. So this is for F2, this is for F1. In F1 all are tall, in F2 3 are tall, 1 is small or short. And genotypic ratio and phenotypic ratio in F1 was 4:0, but here 1:2:1 of genotypic ratio, 3:1 is phenotypic ratio. ओके, ये मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको लगभग सिमिलर रिजल्ट मिले। तो उसने ये बताया कि ये जो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, उनका उसने नाम दिया कुछ जीन्स का, कि जो करेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देता है, मीन्स हमने किसका क्रॉस किया था, टॉल और डॉर्फ का, लेकिन F1 में कैसे दिखे सारे, टॉल। तो द करेक्टर विच इज़ एक्सप्रेस्ड in F1 generation is called as dominant character. Expressed in F1 में एक्सप्रेस हो रहा है, that is dominant. And recessive character which is not expressed in F1. तो अब देखो यहाँ पे हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया था, लेकिन सारे कैसे बने, टॉल, कोई भी डॉर्फ नहीं आया, वो अपीयर ही नहीं हुआ। तो जो करेक्टर F1 में अपीयर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एज पर द मेंडल, एंड द करेक्टर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन F1 इट कॉल्ड एज डोमिनेंट। ये फर्स्ट लॉ था मीन्स मेंडल का, दिस इज द फर्स्ट मेंडल्स लॉ, इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव। ओके, next we will see in our next video lecture. Take care.